पारडी तहसील के कलसर गांव डूंगरफलिया में आई आंगनवाड़ी में आते 30 जितने छोटे बच्चे के भाग में दिया जाता बाल भोग पिछले 3 मास से नहीं मिला है, जो कि इस मामले की फरियाद लेकर जब बच्चों की माता सरपंच के पास पहुंची तब इस मामले सरपंच ने रजिस्टर जांच करते कई बनावटी सही करके बालकों के भाग का बाल भोग किसी दूसरी जगह पर भेजा जाने की बात सामने आई है। यह बाल भोग अगर बच्चों को और माता को नहीं मिलता तो किस जगह भेजा जाता है, इसकी जांच करने में आए तो आईसीडीएस विभाग में चल रहा बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। पारडी तहसील के कलसर गांव डूंगरफलिया में आई आंगनवाड़ी में पिछले 3 मास से बालकों को दिया जाता बाल शक्ति बाल भोग देने में नहीं आया, जिसकी फरियाद बच्चों की माता ने गांव के सरपंच को की थी, जिसके अंतर्गत सरपंच द्वारा आंगनवाड़ी के रजिस्टर चेक करते हकीकत बाहर आती देख चौंक गए थे, क्योंकि 3 मास से देने में नहीं आए बाल भोग का कई लोगों की डुप्लीकेट सही कर रजिस्टर में वितरण किया होने का बताया था, जबकि रजिस्टर में जिसकी सही है उसे लाभ मिला ही नहीं। इस तरह 3 मास से यह बाल भोग कहाँ गया यह जांच का विषय है, जो कि यह पूरे मामले की जानकारी सरपंच द्वारा पारडी आईएडीएस को करने में आई तो उनके द्वारा कई लोगों को 2 मास का पगार नहीं मिला होने को पता चला। 3 મહિનાથી અહીંયા પેકેટ આપવામાં આવ્યો નથી। બાલ મંદિરમાં જે નાના છોકરાઓના અલગ અલગ પ્રકારના પેકેટ વેચવામાં આવે છે। હવે 6 મહિનાનો છોકરો હોય તો તેને કંઈ માતાના તરફથી જે ખવડાવવામાં આવે તેનું હોય, પછી 6 મહિનાથી 1.5 વર્ષનું થઈ જાય તેના અલગ અલગ 3-4 પ્રકારના પેકેટ આપવામાં આવે છે। એમાં સર શું થયું છે કે અમને 3 મહિનાથી માર્ચ, એપ્રિલ અને મેનું કંઈ આપવામાં આવ્યું નથી અમને। તો અમે સરપંચશ્રીને બધી લેડીઝો થઈને સરપંચશ્રીને અમે જાણ કરી છે કે સાહેબ આવું આવું છે, તો તેમણે વલસાડમાં મેડમને કરી અને પછી સરપંચશ્રીએ બધી વાત કરી અને જે મેડમ છે તેની સાથે કરીને અમને બધાને ભેગા કર્યા અને આ પેકેટ ના સારું તે પછી જે મેડમ છે તે તો નીકળી ગયા છે, હમણાં તેનું કોઈ રજા પર ઉતા એટલે નીકળી ગયા છે। તો એક મેડમ આવીને અમને પેકેટ વેચી ગયા છે। તો તેમાં શું છે કે એપ્રિલ અને મેનું આપ્યું છે, માર્ચનું નથી હજુ આપ્યું। માર્ચના જથ્થો તો આવેલો છે પણ માર્ચનું એ લોકો કહે છે કે માર્ચનો જથ્થો મારી પાસે નથી, આ એપ્રિલ અને મેનું તમે રાખો। એક બેનનું થયું છે, અંકિતાબેન આ કનુભાઈ પટેલનું થયું છે કે સાઈન એમાં કે થયું છે, કે પટેલ થયું છે। પછી એમણે જ્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું ત્યારે મેડમ સાથે કંઈ વાતચીત નથી કરી, પછી સરપંચશ્રીને જણાવ્યું કે આવી રીતના થયું। પછી સરપંચશ્રીએ તે કેપ્ચર કરી લીધું છે મોબાઈલમાં અને એમને જાણ કરી છે। મળવી જ જોઈએ, ટાઈમસર આપો। છોકરાઓને સરકાર આપે છે વસ્તુ, આપણા પોતાના ઘરથી કે પૈસા ખર્ચીને એ લોકો નથી આપતા મળે, આ સરકારનું વસ્તુ છે। ટાઈમસર આપો અને વ્યવસ્થિત આપો। તમને અહીંયા તમે ફોન નહીં કરી શકો કે તમને મુલાકાત નહીં થઈ શકે તો તમે કોઈના થ્રુથી કહેવડાવો કે તમારું વસ્તુ આ જગ્યાએ આવ્યું છે કે જથ્થો આવ્યો છે, આ જથ્થાનું બી અમને જાણ નથી થતી। માંગ તો એ જ છે કે જે સરકાર તરફથી મળતું છે છોકરાઓને કે માતાઓને કોઈને પણ એ મળવી જોઈએ। ત્યારે અમને 3 મહિનાથી આ લોકડાઉન ચાલે છે, ત્યારે એક વાત તો આ ઘરે એમ અત્યારે એ છે તો મળવું જ જોઈએ આ બાળકોને ખાવાનું જે સરકાર તરફથી મળે તે મળવું જ જોઈએ। ને જ્યારે અમને પેકેટ અમે નહીં મળ્યા એટલે અમે સરપંચને જાણ કરી, ત્યારે સરપંચશ્રીએ વલસાડ જાણ કરી અને પેકેટ ઘરે આપવા આવ્યા। તેમાં મને 2 મહિનાના મળ્યા અને માર્ચ મહિનાનું નથી મળ્યું। તો તે એપ્રિલ મહિનામાં મે મહિનામાં મેં સહી કરી, મેં મારી સહી પૂરી કરી અને જ્યારે મને એપ્રિલ મહિનામાં સહી કરવા આવી ત્યારે ઓલરેડી ત્યાં સહી હતી જ ને તે સહી ખોટી હતી। જે મેં કે પટેલ કરું, આખું પૂરું પટેલ લખું, ત્યાં તે કે પી જ હતું। એટલે મેં જોયું તો મેં તે લોકોને નહીં કીધું કે આ મારી સહી ખોટી છે અને આવું કંઈ મેં જાણ નહીં કરી। મેં સરપંચને જાણ કરી કે નહીં મારી સહી ખોટી છે। એ લોકોને કહે છે કે મેં બધાને ફોન કર્યા એમ કે જે લોકોને ફોન કર્યા તે પેકેટ આવીને લેતી ગયા એમ કે હવે કે ફોન કર્યા પણ અમને ફોન નથી આવ્યો, અમને જાણ નથી કરી કે પેકેટ છે આવેલા છે લેતી જાઓ એમ કહેવા માંગે છે, પણ અમને પેકેટ મળ્યા જ નથી। અત્યારે અમારી પાસે જે આંગણવાડીમાં જે લાભાર્થીઓને લાભ મળે છે એ બહેનોનો અડધી બહેનોને કંઈ લાભ મળ્યો નથી, તો અમારા ઘરે એ લોકો કંઈ સમસ્યા લઈને આવી
એટલે પૂછ્યું મેં એમને કે શું સમસ્યા છે તમારી. તેમણે કીધું કે અમને 3-4 મહિનાથી કંઈ પેકેટ મળ્યા નથી. પછી અમે CDP મેડમને વલસાડ જાણ કરી, ત્યારે કંઈ એમને કદાચ ફોન આવ્યો હશે, એટલે કાલે અમને એ લોકો આપવા માટે આવ્યા એ લોકોને. તેમાં પણ માર્ચ મહિનાનું બાકી છે, એપ્રિલ અને મે 2 મહિનાનું આપી ગયા છે. તેમાં ધાત્રી માતાઓનું તો આવ્યું જ નથી, તેમનું તો હજી 3-4 મહિનાનું બાકી જ છે. ખાલી બાલભોગ ને બાલ શક્તિ ને પૂર્ણ શક્તિ તે બી અડધા બહેનો જ આપી ગયા, બાકી પૂરી બહેનોને પણ નથી આપ્યું. અડધા બહેનોને આપી ગયા છે અને અડધા બહેનો બાકી છે. તો અત્યારે લોકડાઉનની એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યારે ખરેખર બધાને જરૂર છે, ત્યારે એમને મળવું જોઈએ. પણ પાછું મને બેને આવીને કીધું કે બેન મારી જે સહી કરવાની હતી એપ્રિલમાં, તો ઓલરેડી સાઇન હતી જ. મેં જે સાઇન કરું છું તે AK પટેલ કરું છું, જ્યારે એમાં રજિસ્ટરમાં જે સાઇન હતી AKP એટલું જ કરેલું હતું, અને એ સાઇન મારી છે જ નથી. ખોટી સાઇન કરીને એ લોકો હવે માલ બધે સગે વગે કરતા હોય એવું લાગે છે. જ્યારે અત્યારે બાળકો કુપોષણ હોય એમને પોષણ મળે એ માટે સરકાર યોજના બધી બહાર પાડેલી છે. બાકી એ લોકો બાળકોને કંઈ પૂરતું સુવિધાઓ મળતી નથી એવું લાગે છે. અમે આગળ જઈશું, CDP મેડમને તો વાત કરી જ છે ને, એઓ પણ ધ્યાને નહીં લે તો પછી આગળ અમારે કાયદેસરની જે જવાબદાર વ્યક્તિ સામે ગુનો દાખલ કરી તપાસ કરીને આગળ. कलम बनाती बिग सेलो नाम की कंपनी में 700 से ज़्यादा कामदारों को पगार नहीं मिलते, कंपनी के गेट के पास इकट्ठा होकर कोप दिखाकर दूसरे कामदारों को कंपनी में जाने से रोका, जब मैनेजमेंट बेफिक्र होकर प्लांट में तमाशा देख रहे थे। आसपास के विस्तार में लॉकडाउन के दौरान बंद उद्योग में कई कामदारों को उद्योगकारों ने पगार नहीं चुकाया, जिसको लेकर हर रोज़ विविध कंपनियों में वर्कर हंगामा मचा रहे हैं। तब ऐसे उद्योगकारों में देश की नामांकित कंपनियों द्वारा भी कामदारों को पगार चुकाने में नहीं आया। देश में कलम क्षेत्र में नामांकित बिग सेलो कंपनी ने भी कामदारों को मार्च महीने के 7 दिन के पगार के बाद अप्रैल महीने का पगार नहीं चुकाया, जिसको लेकर कामदारों ने कंपनी के गेट के पास इकट्ठा होकर कोप दिखाया था। कंपनी के कामदारों ने बताया कि कंपनी में करीबन 700 से ज़्यादा कामदार काम करते हैं, जिसको पगार चुकाने में नहीं आया। कामदारों द्वारा पगार और काम की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ पगार चुकाना पड़े इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया होने की बात की, जबकि कंपनी के संचालक द्वारा बताने में आया कि कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा और कॉन्ट्रैक्ट के कामदार काम पर लेने में नहीं आए, तो किस तरह पगार चुकाया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट था वह कॉन्ट्रैक्ट हमने अप्रैल महीने से रद्द कर रिन्यू नहीं किया। इसके बावजूद मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर कामदारों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ને પછી આ લોકડાઉન આવી ગયું, એના કારણે અમને માર્ચ મહિનાનો પગાર તો અમને મળ્યો, પેલો 22 તારીખ તો જો 7 દિવસનો હતો ને એ પગાર અમને મળી ગયો છે સાહેબ, પણ આ એપ્રિલ મહિનાનો પગાર મળ્યો નથી. પછી એ લોકો ફોન કરેલો, પણ પછી કીધું કે પાછો ફોન કર્યો, ફોન આવેલો નથી એ લોકોનો. અમને પગાર જોઈએ. હવે એ લોકો એમ કહે કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉડી ગયો છે, તમે કંપની ખાતે કરો, તમારે આટલા ગેટ અપડાઉન કરો ને એટલે અમને આટલી સેલેરીમાં બી નહીં પોસાય અમને, એટલે સેલેરીમાં બી થોડો ઘણો ડિફરન્ટ થવો જોઈએ એમ. કેમ કે અમે ત્યાંથી આવીએ ને 5-6 હજાર અમને મળે, અમારે તો બાઇકમાં મેન્ટેનન્સમાં બધો જતો રહી છે પગાર, એટલે પગાર બી થોડો માંગ વધારો હોય તો સારું પડે અમને. આ કંપની બિગ સેલો છે જેમાં અમે કામ કરતા છીએ, અને હું ધરમપુરથી આવું છું. એટલે અમારે પગારવાળો જ પ્રોબ્લેમ છે. માર્ચનો 6 દિવસનો આપ્યો છે, એપ્રિલનો જો આપ્યો નથી અમને. આજે 200 થી 300 જણા જેવા ભેગા થયેલા છે ને ટોટલ લગભગ 700 થી 800 જણા જેવા કામ કરે છે કોન્ટ્રાક્ટમાં. વધારે કરીને કોન્ટ્રાક્ટમાં જ છે લોકો, ને કંપની પર જ બધું જે છે તે ચાલતું છે. કોઈના ઘરે કોઈ કમાવાલું નથી, અમારે બી કંપની પર જ બધું ચાલતું છે. કંપની સંચાલક એમ કહે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ તમારો રિન્યૂ નથી કરાયો એમ, ને એપ્રિલની 1લી તારીખથી તમારો કોન્ટ્રાક્ટ જ ઉડાવી દીધો છે એમ કે કોન્ટ્રાક્ટવાળાને કોઈ નામ નથી કાઢી મૂક્યું. અમને એવું કંઈ પહેલેથી કંઈ જાણ નથી કર્યું. वलसाड जिला से अब तक 8 जितनी श्रमिक ट्रेन को यूपी, MP और बिहार भेजने में आई। श्रमिकों को शांतिपूर्वक सैनिटाइज किए कोच में भेजने में आया। ऐसे में जौनपुर जाती ट्रेन के कोच में गंदगी वाला वीडियो वायरल हुआ था। वापी GIDC और
दूसरे औद्योगिक एकम में काम करते 11,200 श्रमिकों यूपी, एमपी और बिहार शांतिपूर्वक पहुंचाने से वलसाड कलेक्टर CR खरसाण को शाबाशी दी जा रही थी। वापी रेलवे विभाग भी अपनी सर्विस की तारीफें कर रहे थे। ऐसे में एक वायरल वीडियो ने चकचार मचा दिया। इसके अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार वापी से गुरुवार को एक श्रमिक ट्रेन यूपी के जौनपुर के लिए निकली थी। यह ट्रेन में 1600 जितने श्रमिक थे। यह ट्रेन के सभी कोच में गंदगी दिखने को मिली, जिसके अंतर्गत वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने जांच का आदेश दिया था। वापी रेलवे विभाग ने ट्रेन भेजने से पहले उसको डिसइंफेक्शन करने में आ रही है और सभी कोच को सैनिटाइज की होने की तारीफ पहली ट्रेन निकली तब की थी और एक मुसाफिर ने यह वीडियो वायरल कर पोल खोल दी थी। वापी शहर तहसील के चनोद गांव में स्थित अरिहंत गार्डन नामक सोसाइटी की बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से गिरे 1.5 वर्षीय बच्चे का चमत्कारिक बचाव हुआ। मिली जानकारी के अनुसार 1.5 साल का बच्चा, जिसका नाम छत्र था, उसके पिता पुष्पक थापा जो अरिहंत गार्डन नामक सोसाइटी में गार्डनिंग का काम करते हैं। सुबह छत्र 7वीं मंजिल पर खेल रहा था, जहां से खेलते हुए नीचे गिरा। आमतौर पर तीसरी या चौथी मंजिल से गिरने के बावजूद भी जिंदा रहना मुश्किल है, तब यह बच्चा 7वीं मंजिल से गिरने के बावजूद भी आश्चर्यजनक तरीके से जिंदा रहा। यह 1.5 साल का छत्र 7वीं मंजिल से सीमेंट की सख्त कंक्रीट की जमीन पर गिरा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने में आया, जहां 24 घंटे ICU में दाखिल किया। डॉक्टरों द्वारा बताने में आया कि गिरने के बावजूद भी उसे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। અરિહંત ગાર્ડનમાં બી બિલ્ડિંગમાં એક છોકરું નાનું 1.25 વર્ષનું છોકરું પડી ગયું છે અત્યારે થોડી વાર પહેલાં ને અત્યારે હોસ્પિટલમાં એને સારવાર હેઠળ લઈ ગયા છે ને અત્યારે એને 2% આવ્યા છે। CT સ્કેન કરાવ્યું છે, અત્યારે રિપોર્ટ બી નોર્મલ આવ્યા છે, કંઈ ઈજા વધારે થઈ નથી। અત્યારે 24 અવર્સ માટે એમને ડૉક્ટરની નિગરાનીમાં રાખવામાં આવ્યું છે। કયા માળેથી પડ્યું ને શું કરતો હતો? 7મા માળેથી પડ્યું રમતા રમતા ને એ એટલું 7મામાંથી પડવા છતાં પણ એમને કોઈ વધારે ઈજા થઈ નથી। એક જોવા જેવી બાબત છે। એ આપણે અહીંયા ગાર્ડનનું કામ કરે છે, એમનો છોકરો છે। છોકરાનું નામ છત્ર છે, એ 1.25 વર્ષનો ઉંમર છે। वलसाड जिला में रोजगार धंधे की छूट मिलते कामगिरी शुरू हुई है। तब वलसाड जिला के उमरगांव तहसील में नियमों का भंग हुआ दिखने को मिला। पालिका द्वारा गटर की कामगिरी करने में आई, जिसमें बाल मजदूर काम करते दिखने को मिले। यह नियम का सरेआम भंग हो रहा है। तब लॉकडाउन में रोजगार शुरू होने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं और ऐसे काम में विकट परिस्थिति के बीच बच्चों के पास मजदूरी करवा रहे हैं। तब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ज़रूरी कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। वो 2 बच्चे काम कर रहे, वो भागे, आपके वहाँ काम करा रहे थे। 2 बच्चे थे, वो बेचारा भाग के गए। घर पे गए तो बच्चे के पास काम कराते हो? हम लोग कर रहे हैं, साथ में कर रहा था, हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। बच्चे काम कर रहे हैं। नगर पालिका का काम चल रहा है। हाँ जी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है मेन? कॉन्ट्रैक्टर तो सर मैं जानता नहीं हूँ। तो आप सुपरवाइजर, हम तो काम कर रहे हैं। आप सुपरवाइजर हो? सुपरवाइजर आप कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी काम कर रहे हो? हाँ, आदमी से वलसाड जिला ऑरेंज जोन में है। तब जिला वहीवटी तंत्र द्वारा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ज़रूरियात की चीज़ों की दुकान खोलने की छूट देने में आई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर खरीदी करने बाहर जा रहे हैं। इसी के साथ
वलसाड जिला पुलिस वहीवटी तंत्र भी लॉकडाउन शुरू हुआ तब से अपनी फर्ज निभा रहे हैं। इसी के साथ जिला में जीआरडी, होमगार्ड, ट्रैफिक ब्रिगेड और पुलिस के जवान सहित 2800 जितने पुलिसकर्मी अपनी सेवा निभा रहे हैं। हाल लॉकडाउन के दौरान अब तक कुल 6000 जितनी एफआईआर दर्ज करवाने में आई है। इसी के साथ 7000 जितने आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज करने में आया है। 8000 जितने वाहन डिटेन करने में आए हैं। इसी के साथ जिला वहीवटी तंत्र द्वारा लॉकडाउन का चुस्ती से पालन करवाया जा रहा है। तो साथ ही में वलसाड जिला में कोरोना पॉजिटिव के 4 मरीज ठीक होते छोड़ देने में आए हैं। हाल सिर्फ एक ही केस एक्टिव है जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद वलसाड जिला कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस तरह वलसाड जिला जल्द ही ऑरेंज जोन में से ग्रीन जोन में प्रवेश करेगा। वलसाड जिला में अब तक कुल 4 जितनी ट्रेनों द्वारा श्रमिकों को भेजने में आया है। उसी के साथ आज रोज और एक ट्रेन जौनपुर के लिए निकलेगी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को भेजने की कामगिरी शुरू करने में आई है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से तंत्र द्वारा जारी किया लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म होने आया है। तब लॉकडाउन पार्ट 4 में ज़्यादा बढ़ाने का संकेत प्रधानमंत्री ने दिया था और राज्य के सभी सीएम को अपने राज्य की परिस्थिति की समस्या के अंतर्गत निर्णय भेजने को बताया था, जिसके अनुसार अब लॉकडाउन पार्ट 4 में कई छूटछाट देने की शर्तों के साथ नियम जारी किए जाएंगे। तब पारडी विस्तार के श्रमिकों की धीरज टूटते अपने परिवार के साथ यूपी जौनपुर वतन जाने पारडी से आज रोज कुल 21 बस में करीबन 618 परप्रांतीय श्रमिकों को वलसाड रेलवे स्टेशन पर वहीवटी तंत्र द्वारा पहुंचाने में आया था और जहां से 4 बजे ट्रेन निकली। पारडी शहर कांग्रेस समिति के प्रमुख बिपिन भाई पटेल ने बताया कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन का किराया कांग्रेस समिति द्वारा 247 श्रमिकों में प्रति श्रमिक को 740 चुकाए, जो श्रमिक ने कबूल किया था। भाजपा कांग्रेस दोनों पक्ष पर प्रांतीय श्रमिकों को वतन पहुंचाने का श्रेय लेने का दावा करते दिखने को मिले। जब पारडी तहसील भाजपा प्रमुख महेश भाई देसाई ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किराए के 85% और राज्य सरकार द्वारा 15% श्रमिकों को चुकाने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत कई सवाल उठ रहे हैं। श्रमिकों को वतन भेजने वहीवटी तंत्र के मामलतदार NC पटेल और अर्बन आरोग्य टीम मामलतदार कचेरी में सभी श्रमिकों के जाने की तैयारी, स्कैनिंग कर फूड पैकेट की व्यवस्था वहीवटी तंत्र और मोक्षरत समिति के साथ रहकर योग्य सहकार दिया था। साथ ही मोतीवाड़ा BS पेट्रोल पंप के संचालक देगिस आहिर ने श्रमिकों को बताया कि सुबह बिस्किट के पैकेट की व्यवस्था सभी श्रमिकों के लिए करने में आई थी। पारडी के जिग्नेश आहिर ने खुशी व्यक्त की थी। श्रमिकों को वतन भेजने पारडी पालिका के प्रमुख फाल्गुनीबेन भट्ट, CEO प्राची दोषी, स्टाफ सभी ने अपनी फरज निभाई थी। પારડીથી ટોટલ 617 શ્રમિકોને આપણે યુપી ને જોનપુર સ્ટેશન તરફ રવાના કરવાના છે। એની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારના 228 માણસો છે અને સિટી એરિયાના આપણા 379 પીપલ છે અને એ બધાને આપણે બસના રૂટ પ્રમાણે આજે એમને બેસાડી દીધા છે। ફૂડ પેકેટ આપીને એમને આજે બપોરે 4 વાગે જે ટ્રેન જશે એમાં એમને અહીંયાથી રવાના કરવામાં આવશે। ટ્રેનમાં જોનપુર સુધીના સ્ટેશનની જે 4-6-7 જિલ્લાઓ છે એ જિલ્લાઓના શ્રમિકો છે આની અંદર અને એની અંદર 690 રૂપિયા ભાડું છે ટ્રેન। અત્યારે અમે ભાડું એમની જોડેથી શ્રમિકો જોડેથી લઈને એ ટિકિટો ખરીદી છે અને પછી કેન્દ્ર સરકાર વ્યવસ્થા કરશે। ફૂડ જમવાનું અમે મામલતદાર ઓફિસ તરફથી જ અમને બનાવાડી અને આ જે મોક્ષરત સમિતિ છે એમણે ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કર્યું છે અને પાણીની બોટલ અને બિસ્કિટ્સના પેકેટને અલગ અલગ સંસ્થાઓ અને માણસો છે એ લોકો વિતરણ કરવાના છે અને એ આપીને રવાના કરશે। लॉकडाउन की वजह से वडोदरा के 30 से ज़्यादा श्रमिक बच्चों के साथ महाराष्ट्र से गुजरात के लिए 3 दिन पहले निकले थे। गांव के सरपंच द्वारा बस भेजने का बताया होने की वजह से
भिलाड़ हाईवे पर 2 दिन से बस की राह देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पनवेल विस्तार में मजदूरी कर गुजरान चलाते श्रमिक लॉकडाउन को लेकर वतन लौटने मंगलवार को सरकारी बस में तलासरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां से पैदल भिलाड़ हाईवे पहुंचे थे। वडोदरा के दबका गांव में रहते मजदूर रमेश माली ने बताया कि ग्राम सरपंच मनोज भाई के साथ फ़ोन पर बात हुई थी और वह मजदूरों को लेने बस भेजने वाले हैं, जिसकी वजह से मंगलवार की रात से बच्चे महिला मिलकर कुल 39 लोग हाईवे के बाजू में बस की राह देख रहे हैं। वडोदरा के अबोर गांव में रहते विक्रम माली ने बताया कि परिवार के साथ 2 दिन से बस की राह देख रहे हैं। इस दौरान एक संस्था द्वारा सुबह चाय नाश्ता दिया जाता है, बाकी पूरा दिन भूखा रहना पड़ रहा है। गुजरात महाराष्ट्र की सरहद पर वलसाड जिला की अछाड़ चेक पोस्ट पर चुस्ती से चेकिंग के बाद आने जाने की परमिशन देने में आ रही है। पास परमिट के साथ गुजरात में आते और गुजरात से महाराष्ट्र जाते वाहनों की लंबी कतार लगी है। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग कर प्रवेश देने में आ रहा है। देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्य में से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने में आया था। बाद अब नियमों में छूटछाट मिलते अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर वाहन व्यवहार शुरू हो गया है। वलसाड जिला की सरहद पर अछाड़ चेक पोस्ट आई है, जहां हाल वाहनों की लंबी कतार लग रही है। चेक पोस्ट के दोनों तरफ आने जाने के लिए पुलिस द्वारा चुस्त बंदोबस्त करने में आया है। पुलिस द्वारा आने जाने वाले सभी वाहनों का चेकिंग कर पास परमिट का चेकिंग कर प्रवेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र पार्सिंग के वाहनों की एक तरफ लंबी कतार है तो दूसरी तरफ ट्रक जैसी भारी वाहनों की कतार है। पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी से बचने मास्क पहनना ज़रूरी है। हम जिस तरह मास्क का उपयोग करते हैं, वैसे अब बाहर निकलते वक्त सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स और सिर पर टोपी पहनकर सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। तब आज रोज शुक्रवार के दिन वापी के जैन अग्रणी विपुल भाई शाह, हितेश भाई, नितिन भाई ने पारडी 4 रस्ता और पुलिस स्टेशन में मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स का वितरण किया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से वापी, उदवाड़ा, पारडी विस्तार में विविध पॉइंट पर पुलिस में मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स का वितरण करने में आ रहा है और जहां चाय नाश्ते की ज़रूरत हो, वहां जगह पर पहुंचकर सेवा दी जा रही है। साथ ही में ज़रूरतमंद लोगों को अनाज की किट का वितरण किया जा रहा है। विपुल भाई द्वारा बताने में आया कि वलसाड जिला में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं रहा। पुलिसकर्मी सेवा निभा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा, तब तक यह सेवा कार्य भी चालू रहेगा। व्यापक થઈ ગયો છે, પણ આપણા વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટના પોલીસની કામગીરીના લીધે આજે આપણા વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એ પણ કોરોનાનો કેસ રહ્યો નથી અને એ બદલ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટની પોલીસને અમે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને આવી જ રીતે આગળ કાર્ય કરતા રહે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। वलसाड जिला में कोस्ट हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने पारडी और वलसाड के बीच उमरसाड़ी पार नदी पर करीबन 52 करोड़ के खर्च से ब्रिज की कामगिरी शुरू करने में आई है। अब तक 95% काम हो चुका है। यह ब्रिज की वजह से संघ प्रदेश के दमन, उमरसाड़ी, पारडी और वलसाड के शहरों के बीच लोग कोस्टल हाईवे का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगी। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन के बाद तैयार हुए ब्रिज का फिनिशिंग कर उद्घाटन करके शुरू करने में आएगा। उमरसाड़ी माछीवाड़ किनारा विस्तार के निवासी पूर्व आचार्य अरविंद भाई पटेल ने बताया कि यह ब्रिज पारडी तहसील और भगोद, अटार, तिथल गांव को जोड़ने वाला पुल है, जो बहुत ज़रूरी बनेगा, जिससे समय की बचत होगी। वलसाड जाने के लिए पारडी रेलवे फाटक क्रॉस करके जाना पड़ता है, जहां फाटक बंद होने की वजह से वक्त खराब होता है, जो अब ब्रिज विस्तार के रहीशों के लिए ज़्यादा महत्व का रहेगा। यह ब्रिज बनाने
पार्डी के विधायक कनुभाई देसाई द्वारा सरकार में रजूआत करते परमिशन मिली। माछीवाड़ पार नदी पर कोस्टल हाईवे पर ब्रिज के निर्माण के बाद उमरगांव से वलसाड होकर नवसारी तक कोस्टल हाईवे पर पहुंच सकेंगे। संघ प्रदेश के लोग और पार्डी वलसाड के 30 से ज़्यादा गांव के लोगों को आने जाने में सरलता रहेगी। અમારા ઉમરસાડી માછીવાડ ગામ ખાતેથી પસાર થતા કોસ્ટલ હાઈવેમાં પર જે આ એક પુલ બની રહ્યો છે, જે અમારા પારડી તાલુકા અને વલસાડ તાલુકાના ભગોત ગામને જોડતો આ રસ્તો છે, આ પુલ છે। અને એ પુલથી અમારા ગામને એટલે કે ઉમરસાડી ગામને તો ફાયદો છે જ, પણ તેની સાથે ભગોદ અને અટાર તેમજ તિથલ જેવા ગામને પણ વલસાડ સુધીના દરેક ગામોને આ મોટો ફાયદો કરે છે। દમણથી તે વલસાડ સુધીના અંદર એના એરિયામાં આવતા દરેક ગામોને મોટો ફાયદો થઈ રહ્યો છે। 52 કરોડના ખર્ચે બનેલો આ પુલ હવે એ લગભગ પૂર્ણતાને આરે આવી રહ્યો છે। આ કામ પૂર્ણ થાય એટલે તરત જ આ પુલ ચાલુ થશે। ખરેખર 90-95% જેટલું તો કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને એ 95% કામમાં આ પુલ પણ થનગની રહ્યો છે કે મારો ઉપયોગ ક્યારે થાય અને ક્યારે લોકો કરે, એટલે એ ઉદ્ઘાટનની રાહ જોઈ રહ્યા છે। અને જેમ બને તેમ જલ્દી ઉદ્ઘાટન થાય તો અમારા ગામના તેમાં આજુબાજુના વિસ્તારના ગામોના જે લાભ મળવાપાત્ર છે લાભ જલ્દી મળે। તેમાં માછીવાડ ગામનો તો એક મોટો લાભ એ છે કે પારડી ખાતે જવા માટે જે આ રેલવેના ફાટક નડતો હતો અને રેલવેના ફાટકના કારણે કેટલા બધા અકસ્માતો સર્જાયા છે, તો તે અકસ્માતો સર્જાતા પણ બંધ થશે। અને મોટો ફાયદો તો એ કે વલસાડ ખાતે આવેલી હોસ્પિટલો સિટીની અંદર બીજા બધા અમુક ઉપલબ્ધ જીવન જરૂરિયાતના સ્ટોરો વગેરેનો પણ લાભ અહીંના પબ્લિકને મળશે અને તેનો લેશે। એટલે આ પુલથી અવશ્ય લાભ થયો છે। આ પુલ બનાવવા માટે તો મોટો શ્રેય અમારા ગામના જ ધારાસભ્ય એવા શ્રી કનુભાઈ દેસાઈને જાય છે, કે જેઓ એક અથાગ પ્રયત્નથી એમણે આ ગ્રાન્ટ મેળવીને આ પુલ બનાવડાવ્યો છે। એટલે ખરેખર અમે કનુભાઈ ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈને અમે ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ અને એમને વિનંતી પણ કરીએ કે જેમ બને તેમ આ પુલ જલ્દી ચાલુ થાય અને લોકાર્પણ કરે। એકદમ મજબૂત અને સારું થઈ રહ્યું છે, એમની નિગરાનીમાં થઈ રહ્યું છે, એટલે કોઈ પણ વાંધો આવશે નહીં। અને એ માટે આપણા દેશના પ્રધાન માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પણ અમે ધન્યવાદ અને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કે જેઓ આ એક અમારી જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ કહેવો તો પણ ચાલે તેવા પુલને અમને અર્પણ કરી રહ્યા છે। पारडी नगर में विविध दुकानों में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाते और खुद भी हैंड ग्लोव्स और मास्क पहनने के नियम का भंग कर रहे हैं। तब गुरुवार को नियम का भंग करते 3 व्यापारियों के खिलाफ गुनाह दर्ज करते डर का माहौल छा गया था, जिसमें पारडी चिवल रोड पर आए एक हार्डवेयर की दुकान के संचालक पबाभाई उर्फ पर्वत भाई भट्टू, गणेश ट्रेडर्स किराना की दुकान के संचालक अशोक खेताजी, मोबाइल शॉप के संचालक इफ्तेखार मनियार के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कलम 188 के तहत गुनाह दर्ज किया था। पारडी में अनाज की दुकान हो या स्टेशनरी की, नियमों का भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में आ रही है। पुलिस ने दुकानदारों को हैंड ग्लोव्स और मुंह पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखवाने को बताया।